ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں غلام عباس۔ ناظرین، آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے حضرت اویس قرنی کے سلسلے میں، کیونکہ 16 صفر سن 37 ہجری یہی وہ تاریخ تھی جس تاریخ کو حضرت اویس قرنی کی شہادت واقع ہوئی۔ ناظرین، جناب اویس قرنی کا شمار تابعی میں ہوتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے رسول کو حالت ایمان میں دیکھا ہو، رسول کے پاس اٹھا بیٹھا ہو، رسول سے حدیثیں سنی ہو اور حالت ایمان میں اس دنیا سے گزر گیا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ دوسرے تابعی اسے کہتے ہیں کہ جس نے رسول کو نہ دیکھا ہو، صرف رسول کے اصحاب کو دیکھا ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ اور تابعی اسے کہتے ہیں کہ جس نے نہ رسول کو دیکھا ہو نہ صحابی رسول کو دیکھا ہو، صرف اور صرف اس نے تابعی کو دیکھا ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت اویس قرنی کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ یمن کے ایک قبیلے کے رہنے والے تھے، اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں اعلان نبوت کیا، اعلان توحید کیا، تو اس وقت عالم یہ تھا کہ محمد ابن عبداللہ کی صداقت، ایمانداری، سچائی کی وجہ سے لوگ جوگ در جوگ سرحد اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ ایسے عالم میں جب یہ خبر دنیا کے تمام کونے پہنچتی ہے تو یمن میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر پہنچی۔ حضرت اویس قرنی جو یمن میں اپنی والدہ کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، یعنی آپ کی والدہ اور صرف آپ تھے، اور اس کے علاوہ آپ کے نہ کوئی بھائی نہ بہن، صرف آپ کی والدہ اور آپ تنہا یمن میں زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت اویس قرنی کا کام یہ تھا کہ آپ شتربانی کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کے اونٹ چرایا کرتے تھے، اور جو کچھ اس محنت و مزدوری سے ملتا تھا اس سے خود اور اپنی والدہ کا پیٹ پالتے تھے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں اعلان توحید، اعلان رسالت کیا، تو آپ بھی رسول پہ غائبانہ طور پہ ایمان لائے، اسلام قبول کیا۔ سب سے بڑی جو بات ہے اویس قرنی کی وہ یہ ہے کہ آپ رسول پہ ایمان لائے تھے، رسول کے زمانے میں تھے، مگر آپ نے رسول کو نہ دیکھا تھا اور نہ ہی رسول سے ملاقات کی تھی۔ ایک روز آپ نے اپنی والدہ سے کہا، والدہ گرامی، میں محمد ابن عبداللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں مکے جانا چاہتا ہوں۔ جناب اویس قرنی کی والدہ نے جیسے ہی سنا، جناب اویس قرنی سے کہا، ٹھیک ہے اویس، جا تو رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ بہت جلدی آنا۔ اگر رسول سے ملاقات ہو جائے، محمد ابن عبداللہ سے ملاقات ہو جائے، تو ملاقات کرنے کے فوراً بعد چلے آنا۔ پھر کیا تھا، حضرت اویس قرنی یمن چھوڑتے ہیں، اور وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ آپ مکے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا پتہ پوچھتے ہوئے اویس قرنی رسول کے گھر پہنچتے ہیں، لیکن جب اویس قرنی رسول کے گھر پہنچے تو اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ گھر پہ موجود نہ تھے، بلکہ آپ جنگ تبوک پہ گئے تھے۔ اب جیسے ہی اویس قرنی کو یہ معلوم ہوا کہ رسول گھر میں موجود نہیں ہیں، آپ ٹھہر گئے،
सोचने लगे कि आखिर क्या करूं, मक्के में ठहरूं या वापस घर चला जाऊं, इसलिए कि आपकी वालिदा ने ये कहा था कि अवैस अगर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से मुलाकात ना हो तो फ़ौरन चले आना। एक तरफ रसूल तो दूसरी तरफ माँ की मोहब्बत। अवैस करनी आखिर रसूल से मिले बग़ैर वापस यमन चले जाते हैं, इसलिए कि माँ ने कहा था कि बेटा जल्दी आना। यहाँ इस वाक़े से हमें इस बात की भी खबर होती है, इस बात का भी इल्म होता है कि एक माँ कितनी असीम होती है, माँ का मर्तबा क्या है, माँ की अज़मत क्या है। इसलिए कि अवैस करनी रसूल से मिलने आए थे, चाहते तो मक्के में ठहर जाते, क़याम करते, जब रसूल जंग तबूक से वापस आ जाते तो आप रसूल से मुलाकात कर लेते, लेकिन आपके जहन में यह बात थी कि मेरी माँ ने मुझसे कहा है बेटा अगर रसूल से मुलाकात ना हो तो फिर वापस चले आना। और वही किया जनाब अवैस करनी ने, वापस चले आए। जब माँ ने पूछा है बेटा क्या रसूल से मुलाकात हुई, तो आपने माँ से ही कहा नहीं वालिदा गिरामी, जब मैं मक्के पहुँचा और रसूल से मिलने के लिए रसूल के घर पे गया तो मुझे ये मालूम हुआ कि रसूल जंग तबूक पे गए हुए हैं, मैं वापस चला आया। उधर जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जंग तबूक से घर आए हैं तो आपने एक मरतबा अपनी ज़ौजा से पूछा कि बताओ क्या कोई आया था। आपकी ज़ौजा ने कहा हाँ एक शख्स आया था जो आपको पूछ रहा था। जैसे ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, कहा क्या कहीं अवैस करनी तो नहीं आए थे। ज़ौजा ने कहा हाँ अवैस करनी आए थे। रसूल अक्सर कर्न की तरफ, यमन की तरफ देख के कहते थे कि मुझे यमन की तरफ से जन्नत की खुशबू आ रही है। तारीख़ों में मिलता है कि वो वक्त भी आ जाता है कि जब रसूल इस्लाम इस दुनिया से चले जाते हैं। रसूल की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौक़े आए कि जब सलमान फ़ारसी ने रसूलुल्लाह से कहा था या रसूलल्लाह ये अवैस करनी कौन है, तो रसूल इस्लाम ने जनाब सलमान फ़ारसी से यही कहा था कि सलमान अवैस करनी ये वही हैं कि जो अपने कबीले रबिया और मुज़िर को क़यामत के दिन बख्शिश दिलवाएंगे, उनकी बख्शिश करवाएंगे। और आप अक्सर अपने असहाब से कहते थे कि जब अवैस करनी से तुम्हारी मुलाकात हो तो मेरा सलाम कहना। आखिर वो वक्त भी आ जाता है कि जब रसूल इस्लाम इस दुनिया से गुज़र जाते हैं और अवैस करनी की मुलाकात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न हो पाई। और वो वक्त भी आता है कि अवैस करनी जो इस्लामी लश्कर यानी इस्लामी लश्कर की मदद के लिए जो लोग दूसरे मुल्कों से आया करते थे, इन्हीं लोगों में से कुछ लोग यमन से मक्के आए। उन्हीं लोगों में अवैस करनी भी फिर मक्के वापस आ जाते हैं। तारीख़ों में मिलता है कि जब जंग सिफ़ीन सन 37 हिजरी में हुई तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम सिफ़ीन के मैदान की तरफ अपने लश्कर के साथ बढ़ रहे थे। इसी आलम में जनाब अवैस करनी फ़रात के किनारे बैठे वज़ू कर रहे थे नमाज के लिए कि इतने में जंगी तबल की आवाज़ आपके कानों में आई। ठहर जाते हैं, फिर वज़ू करने लगते हैं। कुछ देर न गुजरी थी कि फिर जंगी तबल की आवाज़ आपकी समातों से टकराई। आप फ़ौरन खड़े हो जाते हैं और एक शख्स से पूछते हैं कि ये बताओ कि ये जंगी तबल की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उस शख्स ने कहा कि अली इब्ने अबी तालिब का लश्कर है जो हाकिम शाम के लश्कर से जंग करने जा रहा है। अवैस करनी खड़े हो जाते हैं और फ़ौरन अली के लश्कर में शामिल होने के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ तक कि अमीरुल मोमिनीन का लश्कर कूफे के करीब मकाम ज़िकार पे पहुँच जाता है। उस रोज़ अमीरुल मोमिनीन ने कहा था कि सुनो आज मेरे लश्कर में 20,000 लोग शामिल होंगे। लोग इंतज़ार कर रहे थे, देख रहे थे। यहाँ तक कि वो वक्त भी आ जाता है कि जब 19,999 लोग अली के लश्कर में शामिल हो जाते हैं। एक शख्स कम था 20,000 में, यहाँ तक कि सूरज गुरूब होने वाला था। इतने में लोगों की नज़रों ने क्या देखा कि एक शख्स है जो अजीब व गरीब अंदाज से चला आ रहा है, बड़े ही इत्मीनान से सुकून की हालत में है, अली के लश्कर की तरफ चला आ रहा है। अब जैसे ही लोगों ने उस शख्स को देखा, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने
अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, मौला ये कौन शख्स है? अमीरुल मोमिनीन ने कहा, ये वही शख्स है कि जिसका इंतज़ार था, ये कोई और नहीं बल्कि अवैस करनी है। अवैस करनी जब आ गए तो 20,000 की तादाद जो अमीरुल मोमिनीन ने कही थी वो पूरी हो गई। यहाँ तक कि अवैस करनी अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हो जाते हैं और मैदान सिफ़ीन में पहुँचते हैं, जंग करते हैं, बला का जिहाद करते हैं। ये जंग होती रही, यहाँ तक कि अमीरुल मोमिनीन के बहुत सारे बावफ़ा साथी सहाबी इस जंग में शहीद हुए, जिसमें जनाब अम्मार यासिर और अवैस करनी भी थे। यहाँ तक कि वो वक्त भी आ जाता है कि जब अवैस करनी अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ से मैदान सिफ़ीन में लड़ते रहे, यहाँ तक कि एक जालिम ने आपके सीने पे ऐसा नेज़ा मारा कि आप ज़मीन पे आ जाते हैं और वो वक्त भी आता है कि आपकी शहादत वाक़ई हो जाती है। मैदान सिफ़ीन में ही अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने आपको दफन किया। 16 सफ़र सन 37 हिजरी, यही वो गमनाक तारीख़ थी जिस तारीख़ को हज़रत अवैस करनी की जंग सिफ़ीन में शहादत वाक़ई हुई। आज भी रिक्का में हज़रत अवैस करनी का मज़ार लोगों के लिए ज़ियारत गाह बना हुआ है। जो हज़रात मुल्क शाम जाते हैं वो सिफ़ीन के मैदान में जब पहुँचते हैं तो वहाँ मालिक अश्तर और अवैस करनी का भी मज़ार है। ये वो दो अज़ीम इंसान थे कि जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी जान को क़ुरबान कर दिया। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने आपको हज़रत अवैस करनी की शहादत के बारे में बताया। आज बस यहीं तक। इंशाअल्लाह हम अपने अगले एपिसोड में फिर हाज़िर होंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।